بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ کے بعد لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کو دھمکی آمیز خط پہنچائے گئے۔ اب اس حوالے سے جو ابتدائی تفتیش ہے اس کے اندر کیا انکشاف ہوا ہے، اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اس وقت جو پاکستان کے سیاسی حالات ہیں، اس تناظر میں کیا اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ سے گیم نکل چکی ہے؟ نون لیگ کے عام رہنما بھی تحریک انصاف اور عمران خان کے ہم نوا کیوں نظر آ رہے ہیں؟ اور آج جاوید لطیف جو ہے انہوں نے تو مزید بہت کچھ کہہ ڈالا ہے، اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ پاکستان کی سب سے بڑی جمہوری پارٹی کے انتخابات ہوئے ہیں، کس کو عام ذمہ داری پر فائز کیا گیا ہے یہ بھی آپ کو بتانا ہے۔ اور سیف اللہ نیازی نامی ایک عام کردار، اس نے اڈیالہ جیل میں آج عمران خان سے ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات کی کیا خبر ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھنی ضروری ہے۔ امید ہے آپ ویڈیو سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ جب 9 مئی کا واقعہ ہوا تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بہت سارے تحریک انصاف کے جو عام رہنما تھے، جب مقدمات کا سلسلہ شروع ہوا تو انہوں نے تحریک انصاف سے علیحدگی اختیار کی، بہت ساروں نے پریس کانفرنسز کی۔ کچھ کی جو پریس کانفرنسز ہیں وہ نظر آ رہی تھی کہ جتنی زبردست جو ہے وہ زبردستی کے ساتھ ان سے پریس کانفرنس کروائی جا رہی ہے، اور وہ ہم نے دیکھا جمشید چیمہ صاحب ہیں، ان کی اہلیہ جو ہے وہ مسرت جمشید چیمہ ہیں، یا عالیہ حمزہ ہیں، اس طرح کی جو ہے وہ جو شخصیات تھی ان کی ہم نے دیکھی۔ لیکن بہت سارے ایسے رہنما بھی تھے جن پر زیادہ پریشر نظر نہیں آیا، لیکن انہوں نے پریس کانفرنس کر کے جو سختیاں تھی اس بنیاد پر اپنے آپ کو سیو کر لیا۔ لیکن اب آج سیف اللہ نیازی یہ عمران خان سے ملاقات کرنے گئے ہیں، تو پہلے تو جو سوال ہے کارکنان کی طرف سے وہ کور کمیٹی کے جو اراکین ہیں اور فوکل پرسن جو متعین کیے گئے تھے ان پر اٹھایا گیا کہ آخر اس کو کیوں لے جایا گیا۔ بہت سارے ایسے لوگ تھے، فواد چودھری جیسے، جنہوں نے عمران خان کے خلاف کوئی بیان بھی نہیں دیا تھا، کوئی پریس کانفرنس بھی نہیں کی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اب تک زیر عتاب ہیں اور ان کو ٹکٹ نہیں جاری کیا گیا تھا اس بنیاد پر کہ وہ تحریک انصاف کو چھوڑنے والوں میں شامل ہیں۔ لیکن دوسری طرف ایک ایسا بندہ جو سینیٹر بنا، پھر وہ روپوش رہا، پریس کانفرنس بھی کی، اور اب اس کو آج کیوں ملوایا گیا؟ تو اب یہ بتایا گیا کہ ایک تو عمران خان سے جو ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے معافی مانگی ہے، سرنڈر کیا ہے عمران خان کے سامنے کہ غلطی ہو گئی ہے، لیکن عمران خان نے ان سے ہاتھ ملایا اور پوچھا ہے کہ آپ تو پارٹی چھوڑ نہیں گئے تھے۔ تو عمران خان کے ساتھ جو ملنے کے لیے جو باقی 6 اراکین پہنچے تھے، سیف اللہ نیازی کی وجہ سے اب ان پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور اس کی بنیاد یہی ہے۔ عمران خان نے پھر ان سے باقیوں سے بھی جو سیاسی حکمت عملی ہے اس پر گفتگو نہیں کی۔ تو یہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سیف اللہ نیازی جو تحریک انصاف کے مرکزی سیکرٹری جنرل رہے، بڑی عام ذمہ داری پر رہے، چیف آرگنائزر رہے، لیکن ان پر اب عمران خان کو اعتماد نہیں ہے، اور آج ان کی جو ملاقات ہے وہ بے سود ثابت ہوئی ہے۔ دوسری طرف آج پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے اندر جمہوریت تقریباً ختم ہو گئی ہے۔ کسی حد تک جو ہے وہ چند جو جماعتیں ہیں ان کے اندر جمہوری قدریں کچھ برقرار ہیں، لیکن پاکستان کی جو اس وقت سب سے بڑی سیاسی جمہوری پارٹی ہے وہ جماعت اسلامی ہے۔ جماعت اسلامی کے ہمیشہ جو اراکین ہیں وہ اپنے امیر کا ہر 5 سال بعد انتخاب کرتے ہیں، کوئی کمپین نہیں ہوتی، کوئی لیگ پولنگ نہیں ہوتی، بلکہ ایک متعین اصول ہے ان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے پارٹی کا، اس کے مطابق بڑے اچھے طریقے سے ایک امیر منتخب ہوتا ہے، اور باقی جو ہے اس کو استقامت کی دعا دیتے ہیں، یہی ان کی مبارکباد کا انداز ہوتا ہے۔ تو حافظ نعیم الرحمن، یہ آپ کو علم ہے، بڑا عام کردار ہے جماعت اسلامی۔ اگر کراچی کا کوئی معتبر ترین اور معروف ترین ایک مقبول ترین رہنما اگر کسی کو قرار دیا جاتا ہے تو وہ حافظ نعیم الرحمن ہے۔ اب ان کو 5 سال کے لیے، اگلے 5 سال کے لیے جماعت اسلامی کا امیر مقرر کر دیا گیا اراکین کی طرف سے، اور آج اس کی باضابطہ اناؤنسمنٹ کی گئی ہے۔ تو سراج الحق جو اس وقت مدینہ المنورہ میں عمرے کے لیے گئے ہوئے ہیں، انہوں نے وہاں سے جو ہے وہ ان کے لیے دعائیہ کلمات کہے ہیں۔ تو پاکستان کی ایک مذہبی اور سیاسی سب سے بڑی جمہوری پارٹی کا اعزاز جماعت اسلامی کے پاس ہے۔ یہ آج بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور الخدمت فاؤنڈیشن ہو یا عقل بنو یا کوئی
काबिल बनो मुहिम हो। तो ये ज़बरदस्त तरीके से हमेशा नईम उर रहमान जो है उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। इसके साथ ही अब एक और मामला जो जजेस का, ये 6 जजेस का खत और फिर जजेस को धमकी अमेज खतूत, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत, इमरान खान की सजाओं का बोगस होना, ये सारी चीज़ें जो अदलिया पर एक दबाव है जजत पर, इस पूरे तनादर के अंदर फिर फार्म 47 की हुकूमत, फार्म 45 के तहत तहरीक इंसाफ का मैंडेट छीनना, ये जो कंपेन है अल्टीमेटली एक ग्रैंड ग्रैंड अलायंस के अंदर जो है वो 6 जमाती एक इत्तेहाद कायम हो गया है। मजीद जमातों को भी दावत दी जा रही है, फजल रहमान से भी राब्ता किया गया है ताकि एक भरपूर तहरीक ईद के बाद शुरू की जा सके। अब इस तनाज़र के अंदर जो है वो अब बाज़ लोगों का ख़्याल है कि गेम एस्टेब्लिशमेंट की हाथ से निकल गई है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि SIFC, जिसके तहत कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी आएगी, तो पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनल मामलात हैं, जिस तरह एक डकैती शुदा मैंडेट पर ये हुकूमत खड़ी की गई है, इसके पास कोई लेगेसी नहीं है, कोई इखलाकी जवाज़ नहीं है, और फिर ये कोई इस तरह का इनके पास अलादीन का चिराग भी नहीं है, तो कर्ज़ों के अलावा ये कुछ करने की पोजीशन में भी नहीं है। फिर माज़ी के अंदर करप्शन के शदीद इल्ज़ामात हैं इन पर, तो खाऊ कबाइल जो पाकिस्तान पर बगैर मुसल्लत किए गए हैं, अब इनको बरकरार रखना एस्टैब्लिशमेंट के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गया है, चूँकि सब तनकीद उन्हीं पर होती है। जो कुछ इमरान खान या तहरीक इंसाफ के खिलाफ हुआ 9 मई के जो वाक़यात हैं, उसके बाद जो बेनिफिशियरी बने नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM वगैरह, उन सब पर इस तनाज़र में तनकीद हो रही है। अब ये बात जो है वो की है मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने, एक तजज़ियाकार हैं, सियासी कारकुन हैं। वो कहते हैं इस मुल्क को चलाना किसका काम है? क्या हमारी एस्टैब्लिशमेंट ने मुल्क चलाना है? आप लोगों को मुंतखब करने दें अपने नुमाइंदे, लेकिन हम बज़िद हैं कि हमने ये नहीं होने देना। अब तो एस्टैब्लिशमेंट से भी चीज़ें हैंडल नहीं की जा रही। तो ये हैंडलिंग जो है, ये अब मुश्किल से मुश्किल तर हो रही है, मुश्किल तर होती जाएगी। लेकिन इसके साथ जो सबसे बड़ी बात है, वो ये है कि नून लीग के जो रहनुमा हैं, वो भी अब ये तासर देना शुरू हो गए हैं कि उनका जो कबाड़ा निकला है, उसकी बुनियादी वजह ये है कि वो एस्टैब्लिशमेंट की बी टीम बने हैं। और अब इसका इज़हार एक तो राना सनाउल्लाह ने 2 दिन पहले जो किया, बताया कि मेहरबानी मोहसिन नकवी की, वरना वो वज़ीर-ए-आज़म भी बन सकते हैं। वो सारी चीज़ें उन्होंने की। फिर उन्होंने जेल के अंदर जो सहूलियात हैं, उनका भी ज़िक्र किया कि भई हो सकता है कल हमें भी जाना पड़े इस मुल्क में, कुछ भी हो सकता है, तो ये सहूलियात पर हमें कोई एतराज़ नहीं है, तो इस पर उन्होंने तनकीद नहीं की। अब उनको भी पता है कि ये जीते हुए हैं। अब यहाँ पर जो है जावेद लतीफ़ ने क्या इमरजेंसी क़यामत आ गई थी कि आपने 1 हफ्ते में 3 सज़ाएँ देनी थी? ये आज जावेद लतीफ़ जो है उन्होंने भी कहा है। फिर उन्होंने कहा लोगों ने हमें वोट नहीं दिया क्योंकि हम एस्टैब्लिशमेंट फ़ौज के साथ खड़े हो गए थे। अवाम ने हमें कहा कि ये इदारा पाकिस्तानी अवाम के साथ नहीं है। ये इस तरह की बात उन्होंने ज़रा सख्त की है। अगर आप इनके साथ खड़े होंगे तो आप हमें कबूल नहीं होंगे, ये बड़ा संगीन बात है। काशिफ़ अब्बासी ने उन्होंने कहा खैरियत से हैं? जावेद लतीफ़ कहते हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। पूरा पाकिस्तान सकून में नहीं है। काशिफ अब्बासी, इमरान खान कहते हैं सकून सिर्फ कब्र में है। जावेद लतीफ़ कहते हैं अब तो हमें भी यही लगता है। हुकूमत के जाकर इनको जो है वो सारी चीज़ें अब इनको याद आई हैं। तो अब ऐसा लगता है कि नून लीग के मुख्तलिफ रहनुमा अब ये कहना शुरू हो गए हैं कि ये अभी भी जो एक हाइब्रिड सिस्टम है, इसके अंदर हम डिलीवर करने की पोज़ीशन में नहीं है। फिर आप देख रहे हैं मोहसिन नकवी है, एक तरफ मरियम नवाज के साथ फड्डा पड़ा हुआ है, शहबाज शरीफ के साथ फड्डा पड़ा हुआ है, मुख्तलिफ अपॉइंटमेंट्स पर इख्तलाफात हैं। तो कल को कहीं बराह रास्त जो है वो इतनी मुदाखलत बढ़ गई है, बल्कि अब भी हमारे ताकतवर हलकों की सेनेट के अंदर, कौमी असम्बली में, वजारतों में, सब जगहों पर बाकायदा एलानिया तौर पर जैसे अपने बंदे अपॉइंट करना होता है। तो इससे क्या होगा? एक तो ये जो हुकूमत है, ये नाकाम होगी और उसके बाद ये कहेगी जी हम क्या कर सकते हैं, हम तो मजबूर थे। हालाँकि अगर मजबूर हैं तो आप इक़्तिदार छोड़ दें भई, आप क्यों नहीं छोड़ सकते? वजह आप बड़ी सादा है कि आप पर इतने करप्शन के चार्जेज़ हैं, इतने केसेज़ हैं, जिनके अंदर आपको रिलीफ़ मिल नहीं सकता था, लेकिन वो रिलीफ़ दिया गया और अब आप बाउंड हैं कि आप खामोशी के साथ जो कुछ हो रहा है, जो कुछ किया जा रहा है, आप उसके मुताबिक करते जाएँ। फिर जो गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को खतूत लिखे गए। रेशमा के बाद कुछ और नाम भी आए, दिलशाद का भी और एक और
नाम भी है पार्टी का। अब ये कहाँ से पोस्ट हुए? वहाँ के सीसीटीवी कैमराज़ की क्या पोज़ीशन है? इब्तदाई जो तफ्तीश हुई है ये मैं आपके सामने रख देता हूँ। किसने किया, कहाँ से आए, आगे आप अंदाज़े लगा सकते हैं, हम इस पे बात नहीं कर सकते। यहाँ पे इब्तदाई तफ्तीश के हवाले से बताया गया खतूत भेजने वाला मुबैना तौर पर इस्लामाबाद के सेक्टर I-10 से दाखिल हुआ। खतूत भेजने वाले का ताल्लुक मुबैना तौर पर इस्लामाबाद रावलपिंडी से ही हो सकता है। तमाम खतूत सब डिविजनल ऑफिस पोस्ट ऑफिस सेटेलाइट टाउन और कटारियाँ पोस्ट ऑफिस से भेजे गए हैं। खतूत पर सब डिविजनल पोस्ट ऑफिस सेटेलाइट टाउन रावलपिंडी की स्टैंप मौजूद है। सब डिविजनल पोस्ट ऑफिस थाना न्यू टाउन की इमारत के साथ वाक़ है। सब डिविजनल पोस्ट ऑफिस सेटेलाइट टाउन के इर्द गिर्द कोई सीसीटीवी कैमरा मौजूद नहीं है। आप देखें ना, इतनी मालूमात है कि कोई इर्द गिर्द सीसीटीवी कैमरा भी मौजूद नहीं है। रोजाना की बुनियाद पर 10 से 15 लोग पोस्ट ऑफिस में खत डालने आते हैं। खतूत भेजने के लिए सेटेलाइट टाउन में वाक़ 2 पोस्ट ऑफिस का इंतखाब किया गया। भेजने वाले ने कुछ खतूत कटारिया पोस्ट ऑफिस और कुछ सेटेलाइट टाउन से बॉक्स में डाले। कटारिया पोस्ट ऑफिस के बाहर भी सीसीटीवी कैमरा मौजूद नहीं है। सीटीडी ने मुख्तलिफ मकामात से सीसीटीवी फुटेज लेकर तफ्तीश का दायरा कार वसी कर रखा है। खतूत से मिलने वाले मुबैना जहरीले मवाद को पहले ही पंजाब फोरेंसिक लैब भेजा जा चुका है। खतूत पर लिखे फिंगर प्रिंट्स को भी फोरेंसिक करवाया जा रहा है। अब देखते हैं इसके अंदर मजीद जो तफ्तीश होती है, कोई मामला खुलता है नहीं खुलता। लेकिन जो काजी फायद ईसा के नाम खत जो है उसका जो सारा चीजें सामने आई हैं उसके मुताबिक तो ऐसे लगता है कि कोई ये कह रहा है कि जजेस, जर्नैल, सियासतदान, इन सब ने मुल्क को बर्बाद कर दिया है, अब बहुत हो गया है। ये आपके लिए अलार्मिंग सिचुएशन है, जो आपको भेजा गया है। अब ये कौन है, कहाँ से आया है, मकसद क्या है, ये अभी भी बहुत सारा मामला मुबहम है। देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर इस मामले में कोई मज़ीद तफ्तीश आगे बढ़ती है, यहाँ यहाँ पर मट्टी डाल दी जाती है। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद।